My name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Unlisted Zone. Friends, in this video, I will discuss Kurlon Enterprise Annual Report. जैसे कि हमारे पास कल इसकी एनुअल रिपोर्ट आ गई है, तो आज मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। तो इसमें 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ बताऊंगा कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सेकंड, हम थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल समझेंगे कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करता है। सेकंड, डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स जो लास्ट 2021 में आए हैं। इन्होंने एक्विजिशन किया था स्प्रिंग एयर बेडिंग का, तो उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में वैल्यूएशन करेंगे करलॉन एंटरप्राइज की विद इट्स पीयर दैट इज शीला फोम, कि शीला फोम लिस्टेड मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, करलॉन एंटरप्राइज ने कैसा परफॉर्म किया है, और दोनों की वैल्यूएशन में आज की डेट में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट करलॉन लिमिटेड। इफ आई टॉक अबाउट द करलॉन was established in the year 1962 and it is the oldest mattress company in India, right? What it offers? It offers home comfort solution mattresses. The kind of mattresses they offer is the RC mattress, spring mattress, and the foam mattress. Apart from the mattress, they also offer home furniture and other furnishing products, both to the retail as well as the institutional clients such as hotels, hospital, and hostels. Thirdly, it also export to countries like Nepal and Sri Lanka. Right? It is not like that they are only selling the products in India. They also sell to the country like Nepal and Sri Lanka. If I talk about the distribution, how they sell it in the market, so they have around 10,000 retail counters, right? They have 72 distribution centers, 12 strategically located manufacturing facilities across Karnataka, Odisha, Madhya Pradesh, Uttaranchal, and Gujarat. During the year, the company has formed two wholly owned subsidiaries, namely Comfort Universe Product Services Limited, to carry out the foam business. I have talked here that they have the mattresses. They have different kind of mattresses like RC mattress, spring mattress, foam mattress. So for the foam mattress business, they have formed a new subsidiary, and they have formed one more subsidiary, Belvedere International Limited, to house international brands of recently acquired Spring Air. Spring Air Bedding, this is a new subsidiary they have acquired, which I will talk about later on. That particular company will do the business under Belvedere International Limited, right? अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करें तो दे हैव द प्रेजेंस इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन की बात करें तो दे distribute, they sell their products via franchising model as well as the company owned stores, which is called as COCO. Currently, they have 86 stores under company-owned stores, and all comes under Kurlon Retail, a subsidiary of the company. But if you see the balance sheet of the Kurlon Retail, it is struggling. The net worth is negative. They are in loss. So that means the Kurlon Limited, from their company-owned stores, they are not making profit. If I talk about the online presence, because we have seen what has happened in COVID. The people got locked down in the houses, so the online was the only method to do some shopping. So that is why Kurlon is also targeting its sales via their own website kurlon.com, as well as through e-market partners like Amazon and Flipkart and all, right? So this is how they are doing the distribution. If I talk about the acquisition of Spring Air Bedding, they have done the acquisition of Spring Air Bedding, and that acquisition has been done बाई गिविंग इक्विटी शेयर्स। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी का एक्विजिशन करते हो या उसको मर्ज करते हो, अमागलिमेशन करते हो, तो उसके अंदर होता क्या है कि दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको कैश पे करते हो कि आपकी अगर वैल्यूएशन आज की डेट में 100 करोड़ की है, तो द 100 वील गिव द 100 करोड़ एंड दैट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर डिपेंडिंग अपॉन द ओनरशिप, व्हाट इज द परसेंटेज ओनरशिप। सेकेंड वे होता है, मेरे पास अगर जेब में पैसे नहीं है, इफ आई डोंट हैव द मनी इन द बैलेंस शीट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इशू द न्यू शेयर्स, राइट, टू द अदर कंपनी टू हुम आई एम एक्वायरिंग। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ ₹5, यानी करलॉन एंटरप्राइज का जो एक शेयर था जिसकी फेस वैल्यू ₹5 थी, वो इक्विवेलेंट हुआ 331 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हेल्ड बाई SABCIL। सो इसकी वजह से टोटल नए शेयर कंपनी ने इशू करे वो कितने थे, 1,69,868। दीज आर द न्यू शेयर्स कंपनी इशूड, जिसकी वजह से इसकी पेड अप कैपिटल बढ़ गई। यानी इसका मतलब यह है कि कंपनी ने कोई कैश इसमें नहीं दिया, सब नए इक्विटी शेयर इशू करें जो कंपनी को जो
स्प्रिंग एयर बेड के शेयर होल्डर से उनको मिल गया। अभी एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या थी, वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन अभी निकाल, हमें डेटा भी हमें नहीं मिला है, एमसीए से हमने डेटा निकालने की कोशिश करी। जैसे डेटा आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ अमागलेमेशन करते हो या किसी भी कंपनी को एक्विजिशन करते हो या किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, तो हमेशा दो कंपनीज की वैल्यूएशन निकाली जाती है। वैल्यूएशन के हिसाब से जनरली जब भी स्वैप होता है, इक्विटी स्वैप होता है, तो हमेशा दो कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है और वैल्यूएशन के हिसाब से स्वैप किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी कर्लोन एंटरप्राइज की वैल्यूएशन एक बार देख लेंगे तो एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। अब जल्दी से देख लेते हैं फाइनेंशियल। जैसे कि आप देख रहे हो 987 करोड़ का इन्होंने लास्ट ईयर 2020 में टोटल रेवेन्यू था, जो कि घट के रह गया 783 करोड़। इसका रीज़न ये है कि पिछले साल कोविड था, जिसकी वजह से पिछले लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। शुरू के जो पहला क्वार्टर था वो तो पूरा वॉश्ड आउट हो गया था, तो उसको कंसिडर करें तो लगभग अगर मैं दो क्वार्टर जो पहला क्वार्टर वॉश्ड आउट हुआ अगर उसको जोड़ भी दूं उस रेवेन्यू में, तो लगभग सेम सा रेवेन्यू आएगा। इसमें दैट मीन देयर इज नो ग्रोथ इन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन में भी 1% की कमी है। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो लास्ट ईयर 137 करोड़ का एबिटा था, इस बार 112 करोड़ का एबिटा है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। थोड़ी सी फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है। अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी लास्ट ईयर था 93 करोड़, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर था 93 करोड़, लास्ट ईयर था 72 करोड़, यानी 21 में इन्होंने 72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस आता है 20 करोड़ का। ये बेसिकली क्या है कि इन्होंने कॉक्स एंड किंग के जो सीसीपी थे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। अब जैसे कि वो पता है कि सीसी जो कॉक्स एंड किंग है वो कंपनी एनसीएलटी में चली गई है, उस कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। तो इन्होंने क्या किया कि जो 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी उसको मान लिया कि वो इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास नहीं आएगी, तो इन्होंने 20 करोड़ का लॉस अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बुक कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका टोटल प्रॉफिट जो रह गया वो 75 करोड़ का, जो लास्ट टू लास्ट ईयर था 2020 के अंदर, इस साल मतलब लास्ट ईयर में रह गया केवल 30 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका ईपीएस जो है केवल 8 रुपये का आया, और लास्ट ईयर 2020 में कितना था, 22 रुपये का था, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ, अगर मैं इसके 5 साल पिछले 5 साल को उठा के देखूं तो लगभग 2016 में इसका 900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि लास्ट ईयर 995 था, और अब तो क्या 792 करोड़ ही रह गया। यार इसका मतलब ये है कि पिछले 6 सालों में इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आई है। और दोस्तों होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 15 से 20% ग्रो हो रहा है, वो कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न देती है। अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है तो उसको मार्केट कभी भी वैल्यू नहीं करता, उसको हमेशा 20 से 25 रुपये के ऊपर से ज़्यादा पी नहीं मिल सकता। ग्रोइंग कंपनीज को ही हमेशा ज़्यादा पी दिया जाता है, क्योंकि हम आगे की सोचते हैं, क्योंकि मार्केट क्या होता है जो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है कि फ्यूचर में अगले 5 साल में क्या ग्रोथ आएगी, उस ग्रोथ को मैं आज डिस्काउंट करके उसको ज़्यादा पी दे सकता हूँ। लेकिन जब पता है कि अगले 5 साल में, पिछले 5 साल में ग्रोथ नहीं आई, हम ये मजूम करते हैं कि अगले 5 साल में अगर इसमें ग्रोथ नहीं आती है तो हम इसको ज़्यादा पी दे नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं इसकी पीयर की बात करूं, अगर मैं इसके पीयर कंपैरिजन करूं तो शीला फोम इसका पीयर है। तो इसके आप पीयर में जाओगे, आप ये देखोगे 2016 में 1550 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 2021 में कितना हो गया, 2121 करोड़ का हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है 2121 करोड़, अगर मैं इसकी ग्रोथ निकालूं, ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो लगभग 8 से 9% पे ग्रो हुआ है। ये लास्ट ईयर इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि कोविड का समय था, अदरवाइज उससे पहले देखो तो 11 से 12% की ग्रोथ ये दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कर्लोन एंटरप्राइज की बात करूँ तो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती है। अगर मैं इस साल को भी छोड़ दूँ, 2021 को छोड़ दूँ, 2016 पकड़ूँ तो 893 करोड़ का रेवेन्यू था, 2020 में 995, यानी 1 2 3 4 साल में जो ग्रोथ है केवल 2.7% की है। यानी इसका मतलब ये है कि कर्लोन एंटरप्राइज अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, जो कि शीला फोम है, उसके कंपैरिजन में ग्रो नहीं हो रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो शीला फोम का इस बार का जो ईपीएस है लगभग 53 रुपीज़ का आएगा। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा कर्लोन एंटरप्राइज में अवेलेबल नहीं है। 2021 से अगर देखें तो 48 रुपीज़ का ईपीएस आया है। और अगर मैं इसकी स्टॉक पी की बात करूं तो 51 रुपये का
स्टॉक का पी चल रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ की है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग इस साल का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, यानी ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, करलॉन से, क्योंकि करलॉन का लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। अगर मैं पी की बात करूं तो शीला फोम जो है वो आज की डेट में 51 के पी पे चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं करलॉन एंटरप्राइज का निकालूं तो इसके आउटस्टैंडिंग शेयर लगभग 3.65 करोड़ है। अनलिस्टेड मार्केट में 750 रुपये का प्राइस है। इफ आई टॉक अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी अराउंड 2700 करोड़। एवरेज ईपीएस देखें लास्ट 3 ईयर्स का 16 रुपीज़ का है तो लगभग पी आता है इसका 46 इसका, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, देखो मार्केट में शीला फोम को 51 रुपीज़ का ईपीएस मिल रहा है, 51 रुपीज़ का पी मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि वो 10-11% से ग्रो हो रहा है। अगर मैं करलॉन की बात करूँ तो करलॉन उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा। तो अगर आपकी ग्रोथ नहीं है तो आपको मार्केट उतना पी नहीं देता। अगर मैं इसको 30 का भी पी दूं तो लगभग इसका फेयर वैल्यू जो होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए लगभग 500 रुपीज़ के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।